जी बेटा, anyone who want to define transition elements? Anyone who wants to define transition elements? What are transition elements? What are their properties? What properties of transition elements you are familiar with? जी बेटा. Variable oxidation number, colored compound. अच्छा, okay. So, uh, you want to point out properties of transition elements. So properties may, yes, they have variable oxidation number, they show colored compounds, they are used as catalyst, right? अच्छा. So beta is syllabus mein you need to define transition elements. So definition will be of 2 marks. So for that you need to write D block elements. Transition elements are D block elements which can form one or more stable ion, which can form one or more stable ions. One or more stable ions, it means that these elements show variable oxidation number with incomplete D subshell. With incomplete D subshell. This is how you need to define transition element. ठीक है? अच्छा. Now, beta, in your syllabus, you are to study and discuss the first row of transition elements. First row of transition elements, it starts from scandium. Proton number of scandium is 21. एक मिनट बेटा, ये मैं डोर क्लोज कर दूं. Too much noise is there. ओके. सो बेटा, इस सिलेबस में हमने डिस्कस करने हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक. Scandium's proton number is 21, and before scandium, calcium is there. Proton number of calcium is 20. So after calcium, transition element starts from scandium. Then comes titanium, proton number 22. Then vanadium, proton number 23. Then chromium with 24. Then manganese, proton number 25. Then iron, proton number 26, and then cobalt 27, nickel 28, copper 29, and zinc 30. But these transition elements are known as first row of transition elements. अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नीचे जो रो है, दैट विल बी सेकंड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उसके नीचे थर्ड रो है. तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने फर्स्ट रो को स्टडी करना. ठीक है. अच्छा, सेकंड रो या थर्ड रो की किसी एलिमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यू हैव टू डील दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू हैव स्टडीड फॉर द फर्स्ट रो. जो भी रूल्स हम पढ़ेंगे फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, वही रूल्स हम अप्लाई करेंगे सेकंड रो, थर्ड रो के एलिमेंट्स के लिए. ओके. तो ये है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अच्छा, अब बेटा नाउ इसमें अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट कैम्ब्रिज does not consider zinc and scandium as transition elements. According to Cambridge, this zinc and this scandium, they are non-transition elements. स्कैंडियम को और जिंक को कैम्ब्रिज ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करता. राइट? अच्छा, वाई? तो ये क्वेश्चन है कि वाई स्कैंडियम एंड
zinc are not considered as transition elements. It will be 2-mark question. ओके कि स्कैंडियम और जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता. व्हाई इज इट सो? बट इसकी रीजन एक तो ये है कि स्कैंडियम एंड जिंक इन दोनों के कंपाउंड्स वाइट होते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलर्ड कंपाउंड्स. लेकिन स्कैंडियम एंड जिंक मेक white compounds or colorless solutions. Okay, colorless solutions मतलब स्कैंडियम और जिंक के कंपाउंड्स को जब हम डिसॉल्व करें वाटर में तो द सॉल्यूशन इज कलरलेस, जबकि बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स वाटर में कलर्ड सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि स्कैंडियम और जिंक को ट्रांजिशन मेटल्स की स्कीम से निकाला गया. अच्छा, सेकंड रीजन इज बेटा कि स्कैंडियम एंड जिंक दोनों की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है and that is +3. Scandium only shows +3 oxidation number, and you have to memorize this thing. कि oxidation number of scandium is +3, oxidation number of zinc is +2 only, and you need to memorize. ठीक है, स्कैंडियम और जिंक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है. सो दिस इज सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज बेटा कि जो स्कैंडियम 3+ है हैज एम्प्टी डी सबशेल. अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आई विल टेल यू कि हाउ स्कैंडियम 3+ में डी सबशेल इज एम्प्टी, और जो जिंक है हैज completely zinc 2+ has completely filled d subshell. Completely filled d subshell. D subshell. जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए d subshell should be partially filled. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में d subshell should be partially filled. लेकिन स्कैंडियम 3+ में d subshell vacant है एंड जिंक 2+ में D subshell completely filled है. That is the reason कि स्कैंडियम एंड जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया गया. ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? जिन बच्चों ने हमें लेट ज्वाइन किया है उनके लिए बेटा वी जस्ट डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने डिफाइन किया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं which can form one or more stable ions with incomplete d subshell. ठीक है, और फिर ये the very first row of transition element is written on the screen. This is what we have to discuss. This is known as first row of transition elements. उसके बाद ये question discuss किया जो कि part of the syllabus है कि why scandium and zinc are not considered as transition elements. उसके ये रीजंस हैं कि इनके कलर्ड कंपाउंड्स नहीं हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, डी सबशेल इनकम्प्लीट नहीं है. दैट इज व्हाई दीज आर स्कैंडियम और जिंक को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया. जी बेटा. कॉपर का भी तो डी फुल होता है. कॉपर का डी सिर्फ एक स्टेट में, कॉपर 1 में, सिर्फ कॉपर 1 में डी फुल होता. ठीक है, इसमें डी फुल होता. लेकिन अगर आप लें कॉपर 2+ तो फिर डी इनकम्प्लीट है. डी इज इनकम्प्लीट इन कॉपर 2+. ठीक है, दूसरा और प्रॉपर्टीज भी है ना, कॉपर के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, कॉपर सल्फेट कलर्ड है. ठीक है, तो और प्रॉपर्टीज भी फिर देखी जाएंगी. वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर की, इसलिए कॉपर को रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट. जी बेटा, यस. कोई और भी क्वेश्चन पूछ रहा था?
सर मैं पूछ रहा था, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, आप बता सकते हैं टॉपिक का नाम, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? ट्रांजिशन एलिमेंट हमने स्टार्ट किया आज। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अभी सर ये तक सिर्फ मैंने पहली हाँ क्लास है ना सर, बस ठीक है। पहली क्लास से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैंने डिफाइन किया पहले। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने एज इट इज लिखनी है एग्जाम में। ये 2 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ये पॉइंट्स लिखेंगे कि डी ब्लॉक लिखेंगे और 1 और मोर स्टेबल आयंस लिखेंगे और इनकम्प्लीट डी सबशेल। ये 3 बातें जरूर लिखनी है डेफिनेशन में। ठीक है, और उसके बाद ये ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टू जिंक, ये फर्स्ट रो इसको कंसिडर करते हैं। कैम्ब्रिज ने इसको नॉन ट्रांजिशन रखा है, स्कैंडियम को और जिंक को। ठीक है, कैम्ब्रिज कहता है कि ये ट्रांजिशन नहीं है। मुझसे पूछें तो मेरा शायद कुछ और व्यू पॉइंट हो, लेकिन चूंकि मैं कैम्ब्रिज पढ़ा रहा हूं तो दैट इज वाई कैम्ब्रिज का व्यू पॉइंट है कि स्कैंडियम एंड जिंक नॉन ट्रांजिशन है। अब क्यों नॉन ट्रांजिशन है उसकी ये रीजंस हैं। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे A2 में भी आके मिस्टेक करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अच्छा, यस, पहले तो ये आर्गॉन, प्रोटॉन नंबर ऑफ आर्गॉन इज 18। Can you tell me how to configure 18 electrons? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। ये आर्गॉन है। अच्छा, आर्गॉन मैंने इसलिए लिखा कि नाउ वी हैव स्कैंडियम, तो प्रोटॉन नंबर 21, so this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। सर अब जी डायरेक्ट बेटा, आर्गन लिख देंगे? नहीं नहीं, आर्गॉन वैसे मैं अभी बता रहा हूं कि क्यों लिखा मैंने। अच्छा, स्कैंडियम को देखो, so I placed electrons from 1s till 3p। now अब 3p के बाद what should I do? सर यही कह रहा था मैं, इसकी जगह आप आर्गन लिख देंगे 18। हाँ, इसकी जगह आर्गॉन लिख दूंगा, लेकिन अभी आई हैव टू प्लेस 21 इलेक्ट्रॉन्स ना। अब 2s में। हाँ, आपको रूल याद है बेटा जी कि सर, एस 4s में लगता है। एस और डी में, हाँ 4s में पहले इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं। वाई? सर वो n+l वाली एनर्जी वाली चीज। हाँ, 4s हैज लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 3d। ओके, so electrons will be placed in 4s first and then in 3d। so for 3d only 1 electron is left, so we'll place 1 electron here। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। ये बच्चे पता नहीं क्यों A2 में भी आके मिस्टेक करते हैं। रूल बेटा क्या है कि प्लेस इलेक्ट्रॉन्स इन 4s फर्स्ट देन इन 3d। और रीजन ये है कि एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 3d। दैट इज व्हाई वी डू लाइक दिस। तो ये स्कैंडियम को बेटा यू कैन रिप्लेस, ये इधर से लेके इधर तक फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी जगह यू कैन प्लेस आर्गॉन एंड देन दिस इज 3d1 4s2। एग्जाम में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़े ना तो आप यूं कॉन्फ़िगरेशन लिखें कंप्लीट। ये डोंट प्लेस आर्गॉन देयर इन योर पेपर अनलेस के एग्जामिनर ना बोले आपको। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको कहा जाए तो आप डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऊपर वाली ब्लैक राइटिंग से जो लिखा, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए। अच्छा, नाउ आफ्टर स्कैंडियम द नेक्स्ट मेंबर इज टाइटेनियम। सर टाइटेनियम प्रोटॉन नंबर इज 22, so it is Ar 3d and 4s। yes, but 2 electron here and 2 here। then beta vanadium's proton number is 23। once again place this argon and this 3d and 4s 4s2 and 3d3। अच्छा, उसके बाद बेटा क्रोमियम प्रोटॉन नंबर इज 24। जी बेटा बताएं। 3d5 होगा सर। 3d5 होगा और 4s 1 होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 4s2 and 3d4,
सर अनस्टेबल है, वो डी वाला फुल होता है। हाँ, ये क्यों इनकरेक्ट है? You will not get any mark for this, okay? Actually, in chromium and copper, one electron is transferred from 4s to 3d. Chromium and copper में one electron is transferred from 4s to 3d. Reason is कि D is more stable in D5 state. D1, D2, D3, D4 they are unstable, but D5 is more stable. और फिर D10 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है डी सबशेल की। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होनी चाहिए। एंड देन मैंगनीज प्रोटॉन नंबर इज 25, यस, सो इट विल बी 4s2। हाँ 3 4s2 और फिर डी में बाद में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे। आयरन प्रोटॉन नंबर इज 26, सो दिस इज AR 3d and 4s, so 4s2 and 3d 6, and then cobalt 27, nickel 28. So this one is argon 3d and 4s, so 4s2 3d 7, and then once again argon 3d 4s2 and 3d 8. What about copper? इसके बाद कॉपर ने आना। Copper's proton number is 29, and then comes zinc, proton number 30 है। Yes, beta. What about copper? Should I write like this 4s2 and 3d9? नहीं सर 3d10 होगा और 4s1। हाँ, ऐसा क्यों है? If तो you write like this, you will lose mark, okay? So ये क्या होना चाहिए? It's 3d10 and 4s1. One electron jumps from 4s to 3d क्योंकि 3d is more stable in d10 state. ये 4s और 3d की एनर्जीज बहुत क्लोज होती हैं। 4s की एनर्जी लोअर होती है ऑन एनर्जी एक्सिस, ये दिस इज 4s एंड दिस इज 3d, ओके? तो ये एनर्जी गैप इज वेरी लेस, एनर्जी गैप इज वेरी लेस बिटवीन 4s एंड 3d। लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप सिर्फ क्रोमियम में एंड कॉपर में होगा क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर में जंप की वजह से relatively stable D subshell is developed. क्रोमियम में D5 और कॉपर में D10 डेवलप होता है। बाकी एलिमेंट्स में चूंकि D स्टेबल नहीं होता तो इसलिए S से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता D में। क्रोमियम एंड कॉपर में ये इलेक्ट्रॉन जंप इसलिए करता है कि स्टेबल D सबशेल डेवलप हो जाता। व्हाट अबाउट जिंक? It is 3d and 4s, so 4s2 and 3d10, ठीक है? अच्छा, तो नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक खास वजह से लिखी है, ओके? अच्छा बेटा, आप सुने जरा, अब अगले डिस्कशन जरा गौर से सुने ना बेटा। this is electronic configuration, and now you need to know variable oxidation number. oxidation number को आपने you need to understand oxidation number, ठीक है? अच्छा, ये जो स्कैंडियम है it loses all these 3 electrons. स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसका क्या मतलब है कि स्कैंडियम विल लूज 4s इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज 3d इलेक्ट्रॉन्स, और स्कैंडियम की फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +3। स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, यू नीड टू मेमोराइज दिस। स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ठीक है? तो +3 का क्या मतलब है कि विच इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट बाय स्कैंडियम? +3 स्टेट में कौन से इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम लूज करेगा? SD दोनों। हाँ, 4s2 और 3d1 ये दोनों लूज करेगा। अच्छा,
अब बेटा ये बात ध्यान में रखें कि ये मैंगनीज तक जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज तक, वो D+S इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होगा। ये सुने बेटा गौर से, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। D+S इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? D+S इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ये जो टाइटेनियम है इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +2। +2 का क्या मतलब है कि ये सिर्फ ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज करे। टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से स्टार्ट होगा, +2 में 4s2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। टाइटेनियम +3 भी शो करता है और +4 भी शो करता है, और +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है टाइटेनियम का। ऐसा क्यों है बेटा? +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है? जी बेटा, +4 टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्यों है? सर D+S इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। हाँ, तो D+S इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें टाइटेनियम के लिए तो वो 4 बनेंगे। ठीक है, तो +2 ये S के इलेक्ट्रॉन्स, तो +2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के दरमियान सारी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं। ये पॉसिबल है कि स्कैंडियम S से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यह भी पॉसिबल है कि स्कैंडियम S के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और 1 इलेक्ट्रॉन D से लूज करे। उस केस में +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सर वो जो आपने ऊपर नंबर मैक्स लिखा उसको 3D+4S नहीं होना चाहिए, वरना तो 3S भी लूज करने चाहिए उसे। हाँ बेटा, ये जो है ना हम ठीक है, इसको प्रिसाइज कर लें 3D और 4S। ठीक है, वैसे अंडरस्टूड। हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट की पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट रो में जो वैलेंस SOD हैं वो यही बनते हैं। चलें प्रिसाइज करें 3D और 4। सर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह एग्जिस्ट करती हैं? जी जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उस पर भी बात करेंगे। जी बेटा, कोई और भी पूछ रहा था क्वेश्चन? सर ये एक भी तो लूज कर सकता है। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन भी तो लूज कर सकता है। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देखा गया टाइटेनियम का। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख रहे हैं ना, ये वैसे ही हम ब्लाइंडली नहीं लिख रहे, ये कंपाउंड्स को देख के लिख रहे हैं। टाइटेनियम डाइक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड भी रेयर है लेकिन एग्जिस्ट करता है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है। ये हम ब्लाइंडली नहीं लिख रहे, ये तीनों तरह के क्लोराइड प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि +2 भी पॉसिबल है, +3 भी, +4 भी। लेकिन टाइटेनियम मोनोक्लोराइड नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो इस वजह से +1 ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब में सिर्फ कॉपर का +1 पॉसिबल है। +1 इन सब में किसी का, बाकी किसी एलिमेंट का पॉसिबल नहीं, सिर्फ कॉपर का +1 हो सकता है, बाकी किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का +1 पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब बेटा वेनेडियम का आप बताओ, प्रेडिक्ट करो वेनेडियम के लिए। जी बेटा, वेनेडियम के लिए बताओ। सर वेनेडियम 5+ होता है, 2+ होता है, 3 और 4। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वेनेडियम का क्या होगा? 5। हाँ, +5 होगा। ठीक है, अच्छा, और मिनिमम जो है +2 होगा। +2 होगा। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो दैट इज +2। तो प्लस और मैक्सिमम +5 इसलिए कि 3D और 4s को सम करे तो 5 बनता है। इनके दरमियान सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा कि राइट 3 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ वेनेडियम, राइट 3 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ टाइटेनियम, इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैसे ट्रेस करने। क्रोमियम के लिए बेटा जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा क्रोमियम का? +6। +6 होगा, क्योंकि यहां भी 3D और 4s को सम करे तो 6 बनता है।
इनके दरमियान सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं क्रोमियम के लिए। ठीक है, क्रोमियम के सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है +2 से +6 तक। अच्छा, मैंगनीज का बेटा देखो, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 है मैंगनीज का, 4s2 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो +2 होगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, क्योंकि D+S से 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इन बिटवीन सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। सर क्रोमियम का भी +1 नहीं हो सकता? नहीं, क्रोमियम का भी +1 नहीं एग्जिस्ट करता। क्रोमियम डाइक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। सर नहीं, 1+ में तो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि 3d5 भी है उसके पास। हाँ, लेकिन इन रियलिटी क्रोमियम 1+ के कंपाउंड्स नहीं है, इस वजह से नहीं मेंशन हो रहा। अच्छा, ठीक है, जो रियल फिजिकल वर्ल्ड में जो कंपाउंड्स अवेलेबल हैं उसकी बेस पे ऑक्सीडेशन नंबर ट्रेस हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक बेटा आप बताओ कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आ रहा है? +2। और +2। 3। +2 जो है ना, वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। आप देखोगे आगे भी +2 आपको नजर आएगा सब में। अच्छा बेटा, अब आयरन से आगे रूल जरा डिफरेंट है बेटा। आयरन में ना आप D5 तक जा सकते हैं, D5 स्टेबल है। असल में यहां आयरन में देखिए प्रोटॉन नंबर अब ज्यादा है, ये न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो जाता आयरन से ऑनवर्ड, तो इस वजह से आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और +3 है बस। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 है, ये आप O लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, आयरन 2 और आयरन 3। क्योंकि +3 में आपके पास D5 बनता है। ठीक है, तो अब आयरन के लिए आप D5 से आगे नहीं जा सकते, D5 के बाद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली यहां न्यूक्लियर पुल भी अब बढ़ रहा है। देन कम्स कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में भी अब +5 से आगे नहीं जा सकते, तो कोबाल्ट के लिए +2, +3 और +4 इज दी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ रही है बेटा? कोबाल्ट की +4 अगर हो ऑक्सीडेशन नंबर तो +4 में D5 बनेगा, तब यहां D5 तक आप जाओ। निकल में भी आप D5 तक जा सकते हो, तो निकल के लिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? +2, +3, +4 और +5 एंड दैट्स इट। ठीक है, निकल अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो इट विल डेवलप D5। ठीक है, अच्छा, एनी क्वेश्चन? यस सर, आपने शुरू में बात बताई थी वो एक बार दोहरा दें, अभी इससे यहां पहले। आयरन के लिए या बिल्कुल स्टार्ट में? नहीं मतलब इसी से अभी आपने कुछ सबशेल के बारे में कुछ कहा था, वैलेंस शेल्स। आयरन ये डॉटेड लाइन के नीचे, नहीं इससे पहले। डॉटेड लाइन के ऊपर। अच्छा, ये डॉटेड लाइन के ऊपर मैंने बताया था कि स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, +3 है। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि टाइटेनियम से मैंगनीज तक, टाइटेनियम से मैंगनीज तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3D+4S होगा। ठीक है, टाइटेनियम से मैंगनीज तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 3D+4S। अब इधर देखो, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों को ऐड करो तो यू विल गेट 7, तो 7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, क्रोमियम में 3D+4S से क्या बनता है? 3D5 है, 4S1M, तो 6 बनता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +6 फॉर क्रोमियम। ठीक है, दानियाल बेटा क्लियर हुआ? जी जी क्लियर। ओके। अच्छा बेटा, कॉपर का आपने याद रखना है। आप O लेवल से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कॉपर के कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं? O लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं कॉपर के कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं? 2+। +1 और +2, ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं कॉपर के। ठीक है, अच्छा, और बेटा जिंक का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है +2 ओनली।
जिंक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है एंड दैट इज +2। ठीक है, यस बेटा, कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन आस्क। सर ये देखें ना, वही क्रोमियम और कॉपर वाली चीज में, क्योंकि वो 3D 5 और 10 है तो उसमें +1 आया है, उसमें नहीं आया, इसका कोई रीजन है अलग से, मतलब सिवाय कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, बस सिर्फ यही रीजन है। जो कॉपर 1 क्लोराइड इज अवेलेबल, लेकिन जो क्रोमियम है उसके कंपाउंड्स 1+ ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1+ रिपोर्ट नहीं हुआ। राइट? ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक मार्क का क्वेश्चन ये पूछेंगे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज, इन सबको आप देख लो, तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हुआ या मेजॉरिटी एलिमेंट्स में रिपीट हो रहा है? +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, +2। अच्छा, अब बेटा कोई मुझे ये बताएगा कि अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कोबाल्ट 3+ की, इसका प्रोटॉन नंबर 27 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे कैसे करनी चाहिए? अब ये क्वेश्चन है जो A2 का बच्चा भी मिस्टेक करता है। नहीं, पहले कोबाल्ट की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखे। अच्छा, हाँ ठीक है, आप यहाँ मुझे करेक्ट वाले बता रहे हो। बच्चे वैसे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि 27 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 24 बच गए। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट, आई डोंट नो A2 में आके क्यों ऐसी मिस्टेक करते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स को वो कन्फिगर करते हैं लाइक दिस: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d एंड 4s। फिर वो कहते हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स में पहले 4s में प्लेस करें, तो 2 इधर प्लेस कर देते हैं और 4 इधर प्लेस करते हैं। बेटा क्या ये ठीक है ये कॉन्फ़िगरेशन? नहीं सर, गलत है। हाँ, दिस इज रॉन्ग। और 4s में से पहले मिल जाते हैं। हाँ, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स, जब ये आयन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिमूव होंगे ना। अब ये कैसे हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुए और इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? तो लॉजिकली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, सो यस, जैसे कि ये बता रहे थे कि पहले आप एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d एंड 4s। ये कोबाल्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, ये एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। अब कोबाल्ट 3+ के लिए पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे? पहले एस वाली जगह से। पहले s इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s से और 1 इलेक्ट्रॉन d से रिमूव होगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d6। now this is correct और ये ऊपर वाला इनकरेक्ट था। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपको ये एडवाइस है कि whenever you are to write configuration of transition metal ions for transition metal ions, make electronic configuration of atom first, electronic configuration of atom first। पहले एटम की कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, उसके बाद रिमूव 4s इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट। आयन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो 4s से पहले रिमूव करें, देन फ्रॉम 3d पहले 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। राइट? जब इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हो तो फर्स्ट यू विल प्लेस इन 4s, देन यू विल प्लेस इन 3d।
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो तो यू विल रिमूव फ्रॉम 4s फर्स्ट, देन फ्रॉम 3d। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो तो पहले 4s से रिमूव करेंगे, फिर 3d से रिमूव करेंगे। ठीक है जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एक सेकंड सर, वो ऊपर ऑक्सीडेशन वाले नंबर दोबारा दिखा दें। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ये शीट में शेयर करूंगा क्लास पे, चलो देख लो। स्कैंडियम का 3+ है और जिंक का 2+ है और बाकी ये हैं। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक है सर। वंस अगेन बेटा, मुझे इस पॉइंट पे मैं जरूर एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर टाइटेनियम 3+ को कॉन्फ़िगर करना है तो इसकी कैसे होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन? सर तो पहले इसको एटम की करेंगे। ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए बेटा। मैं वंस अगेन एडवाइस कर रहा हूं, बेटर के ट्रांजिशन मेटल एटम की पहले करें कॉन्फ़िगरेशन। 3s2 3p6 फिर 3d और 4s, तो 4s2 एंड 3d3। अब आप रिमूव करेंगे पहले 4s इलेक्ट्रॉन्स और फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर 3d से रिमूव करें, तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, मैं वंस अगेन बताऊं कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। 23 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा के 20 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो फिर 20 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिख देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। 3p6 3d और 4s, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देंगे, तो ये 18 और 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फिर इसको 0 कर देंगे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। बेहतर यह है कि आप ट्रांजिशन एलिमेंट की पहले कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, उसके बाद 3d से रिमूव करें, तब ट्रांजिशन मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा। ना बेटा, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस, व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। आपका वैसे क्या ख्याल है कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस? डिक्रीज। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और बेटा जी जी। ठीक है, पीरियड में आपने यही पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। बाकी बेटा बच्चे क्या कहते हैं? सर लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट थोड़ी था उसमें। हाँ, लेकिन हमने पीरियड के लिए एक रूल पढ़ा था ना कि पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस, ये टाइटेनियम 23 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25। अच्छा चलें, कोई गैस करें, कोई प्रेडिक्ट करें। सर क्रोमियम तक डिक्रीज करेगा, फिर मैंगनीज से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिर जिंक तक डिक्रीज करेगा। वजह? सर वो 3d5 हो जाते हैं तो वो स्पिन पेयर खत्म हो जाएगा, ओ आगे बढ़ जाएगा, सॉरी। नहीं तो स्पिन पेयर का क्रोमियम क्या का। रिलेशन है उससे, रेडियस से? सर आप आयनिक उसकी एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस जी, चलो ठीक है, आपका व्यू आ गया, गुड अप्रिसिएशन कि आपने कोई व्यू पॉइंट दिया। और बेटा बताएं, व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक? अच्छा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इस डायग्राम से आप बताओ, प्रिडिक्ट करो कि व्हाट इज हैपनिंग टू एटॉमिक रेडियस। जी बेटा। सर सेम है। हाँ, आपको क्या लग रहा है इसमें? सेम लग रहा है ऑलमोस्ट सर। रिमेन सेम, ऑलमोस्ट रिमेन सेम। वाई? ये एटॉमिक रेडियस क्यों सेम रह रहा? जी बेटा।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये एटॉमिक रेडियस क्यों सेम सर रहा? जी जी बेटा। क्योंकि 4s2 जो आपका क्या नाम है आखिरी शेल है उसमें हमेशा 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो हमेशा इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो जी बैलेंस शेल फारूक में। बेटा। जी फारूक बेटा। सर एक तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और साइमल्टेनियसली डी सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। अच्छा ठीक है, यानी इधर देखें, कॉन्फ़िगरेशन को देखें, वापस जाएं ऊपर। सर शील्डिंग कांस्टेंट है। शील्डिंग चेंज नहीं हो रही, नहीं शील्डिंग कांस्टेंट नहीं है बेटा। शील्डिंग सर शील्डिंग चेंज होगी। शील्डिंग क्या हो रही है, इधर से चेक करें, एक मिनट कॉन्फ़िगरेशन देख के बताएं कि व्हाट इज हैपनिंग टू शील्डिंग। सर इंक्रीज हो रही है शील्डिंग। इंक्रीज हो रही है, शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जी सर। हमने पढ़ा था ना कि शील्डिंग जो है वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल होती है। आप देखिए वैलेंस शेल फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल इज वैलेंस शेल। तो ऑलमोस्ट सिर्फ क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं सब में, लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। 3D1 3D इनर शेल है, तो 3D1 3D2 3D3 3D5 इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है। तो प्रोटॉन नंबर का इंक्रीज और शील्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड रेडियस रिमेन सेम। पीरियड में रेडियस इसलिए डिक्रीज करता है कि न्यूक्लियर पुल बढ़ता है। इस केस में न्यूक्लियर पुल का इंक्रीज इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि साथ में शील्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, और शील्डिंग इसलिए इंक्रीज हो रही है कि 3D में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? सर व्हाट अबाउट क्रोमियम एंड कॉपर? हाँ बस वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन क्रोमियम की अब देखो वेनेडियम से तो शील्डिंग ज्यादा है, ठीक है। क्रोमियम और मैंगनीज की शील्डिंग सेम है, सर लेकिन लेकिन उसका क्या वेनेडियम नाम है टाइटेनियम, हाँ उसका इसलिए मैंने वैलेंस लिखा ना आता है। ऑलमोस्ट। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता शील्डिंग में, शील्डिंग इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सही, फिर से बता दें दोबारा। देखो ये जो डी है ना, डी इनर शेल है, डी 3D इज इनर सब शेल। अब 3D में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, देखो ना शुरू में 3D1 है, फिर 3D2 है, फिर 3D3 है, फिर 3D5 है, फिर 3D6 है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, स्कैंडियम से आप नीचे आओ, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन जब भी इंक्रीज हो तो शील्डिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्कैंडियम से आप आगे आओ तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, शील्डिंग इंक्रीज होगी, लेकिन न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज हो रहा क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज न्यूक्लियर पुल एंड इंक्रीज शील्डिंग बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। तो जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो रेडियस सेम रहेगा। जी बेटा, क्वेश्चन? जी तो इधर क्या लिखना चाहिए बेटा? इधर आपको यह लिखना चाहिए कि फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक शील्डिंग increases, नहीं सुना, shielding increases as electrons are increasing in 3D, ठीक है। एक बात, प्रोटॉन नंबर इज आल्सो इंक्रीजिंग, प्रोटॉन नंबर आल्सो इंक्रीजिंग, both will cancel each other's effect. Third point is both shielding and proton number, okay, will cancel each other's effect, as a result atomic radius remains constant, ठीक है। So atomic radius
is almost constant. अच्छा, अब बेटा अगर एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है तो व्हाट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी? सर वो भी कांस्टेंट होगी। हाँ, वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि रेडियस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी शील्डिंग और प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड करती है। तो जब प्रोटॉन नंबर का इंक्रीज और शील्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो रेडियस भी कांस्टेंट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। सर लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा वैलेंस से भी रिलेटेड होती थी। अब जैसे वही बात है जो मैं कर रहा हूँ, क्रोमियम और वो उसकी कॉपर की, उसमें 4s1 है, तो उसमें तो फिर वो इनर शेल में चला जाएगा, तो उसमें तो फिर देखो, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस पे कितना न्यूक्लियर पुल है, इस पे बेस करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। सर तो 4s1 के बाद जब वो 3d में जाएगा, क्रोमियम की बात कर रहा हूँ मैं, 3d5 में, तो वो ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में? नहीं, बस है 2 मिनट है। जी जी बेटा, आप क्रोमियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हो या सेकंड कह रहे हो? सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और यहाँ पे ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस हो रही है। और सक्सेसिव में तो फिर डिफरेंट होंगी ना सर? डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड की डिस्कशन नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, रिमेन्स कांस्टेंट, और ऑब्वियसली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर वेरी करेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट इज द डिस्कशन। बेटा कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन आस्क। सर जितने एलिमेंट्स 1 प्लस स्टेट नहीं स्टेबल